I welcome you all on YouTube channel of Legal Edge After College. Now in this video, I will be discussing question number 43 to 48 from CLAT PG 2021 question paper. Now these questions are from Constitution of India. So this is the third video from Constitution of India. मतलब Constitution of India से जो CLAT PG 2021 में third passage है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी. I have already made two videos from same subject where I have discussed around 12 questions and around 15-20 case laws. So the idea behind bringing this series is to make you aware with the paper pattern of the examination to help you decide what to study and what not to study, which your judgment you have to prepare, and etc etc. Now this video is going to be helpful for everybody who is preparing for any kind of law entrance examination where law as a subject is to be asked. If you're preparing for UGC NET, AIB, for that matter if you're preparing for judiciary APO examination, CLAT or any LLM entrance examination, then you won't regret watching this video till the end. So watch this video till the end and get to know why I'm bragging about this. So here you can see an excerpt. This excerpt has been taken from a judgment. Here the judgment is Common Cause versus Union of India. This was decided by the Supreme Court in the year 2018. Now, this excerpt is related with Advanced Medical Directive, which is also known as लिविंग विल. यहाँ पे यूथनेशिया की बात की गई है, आर्टिकल 21 की बात की गई है, बट आई ऑलवेज सजेस्ट डू नॉट वेस्ट योर टाइम रीडिंग passage or excerpt again and again. Rather, just skim it once. If you haven't read this passage, pause this video here only and read it once. Now let's move forward and see what question number 1 says. So here question number 1 says, based on the given excerpt, which of the following judgment relates to euthanasia? मैंने आपको बताया कि ये जो excerpt है ये लिया गया है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट से, जो कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था. अब इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को लीगलाइज कर दिया है. नाउ व्हाट इज एक्टिव यूथनेशिया एंड पैसिव यूथनेशिया? बेसिकली यूथनेशिया का मतलब ये होता है कि आप अपनी वॉलंटरी विल से डेथ तक पहुंच रहे हैं. नाउ एक्टिव यूथनेशिया में कुछ लीथल चीज, कुछ ऐसी चीज जो कि पॉइजनस है, वो आपके अंदर इंजेक्ट की जाती है और आपको डेथ तक लेके जाया जा सकता है. हाउएवर पैसिव यूथनेशिया में आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, जो कि एक्सटर्नल डिवाइसेस है जिन पे जो बॉडी है वो जिंदा है, उसको रिमूव कर दिया जाता है और पेशेंट को डेथ तक लेके जाता है. यहाँ पे इंडिया में इस केस से पैसिव यूथनेशिया को लीगलाइज किया गया था, राइट, ना कि एक्टिव यूथनेशिया को. दिस यू हैव टू रिमेंबर. नाउ बाकी केस लॉज यहाँ पे जो दिए हुए हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, इन सबको देख लेते हैं. संतोष Singh versus Union of India. Now this is 2016 judgment and this judgment the contention was related to education system, right? और यहाँ पे जो सवाल था वो ये था, एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी ये कहते हुए कि जो स्कूल्स हैं वहां पे जो एजुकेशन दिया जा रहा है उसमें मोरल एजुकेशन मिसिंग है. सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड करते हुए ये कहा कि जो पॉलिसी मेकिंग है वो लेजिस्लेचर का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, और इस बेसिस पे इस पिटीशन को, इस रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया. नेक्स्ट जो केस लॉ यहाँ पे है वो है Anuj Garg versus Hotel Association of India 2008. Now, in this judgment, there was a contention related to section number 30 of Punjab Excise Act 1914. अब ये सेक्शन नंबर 30 जो है पंजाब एक्साइज एक्ट का, ये कहता है कि irrespective of gender, if the age of the person is below 25 years, then that person is not allowed to get employment at any place where intoxication is either made or consumed. इस पर्टिकुलर सेक्शन को चैलेंज किया गया और हाई कोर्ट ने फर्स्ट इसे स्ट्रक डाउन कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में हाई कोर्ट की जजमेंट को सपोर्ट किया, अपहेल्ड किया और कहा कि जो सेक्शन 30 है उसे स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए. आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं. नाउ नेक्स्ट इज मधु Kishwar versus State of Bihar 1996 का ये जजमेंट है. अगेन अ लैंडमार्क जजमेंट. हियर द कंटेंशन वाज रिलेटेड टू छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, और इसमें इस पर्टिकुलर जजमेंट में जो इशू था इट वाज रिलेटेड टू रिस्ट्रिक्टिंग और
डिमिनिशिंग द राइट्स ऑफ द विमेन इन इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी में जो राइट है विमेन के उनको कम कर रहे थे, ये इसका इशू था। और ट्राइबल विमेन के जो इनहेरिटेंस राइट है, जो प्रॉपर्टी राइट है, उनको कम करने का इशू था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट में कहा कि जो विमेन है उनको भी इक्वल राइट्स प्रोवाइडेड है प्रॉपर्टी में, एंड जो ये एक्ट है इसको अल्ट्रा वायर्स कहा। राइट नाउ नेक्स्ट question says, based on the given excerpt, which of the following is incorrect or not correct regarding advanced medical directive? कौन सी ऐसी चीज है जो incorrect है when it comes to advanced medical directive? First of all ये जाने कि advanced medical directive का ही मतलब living will होता है, right? इसी को बोलते हैं living will और advanced medical directive. Now excerpt जो है उसके अगर उसको ध्यान में रखा जाए तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है? ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है द पर्पस एंड ऑब्जेक्ट इज टू एक्सप्रेस द चॉइस ऑफ अ पर्सन रिगार्डिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन एन इवेंट व्हेन ही लॉसेस capacity to take a decision. So this is a correct answer. In the purpose and object of what? The purpose and object of advanced medical directive or living will, क्या इसका पर्पस है? यही तो इसका पर्पस है कि आप अपनी चॉइसेस को बना पाए तब जब आपके पास कैपेसिटी नहीं है डिसीजन बनाने की, राइट? इसीलिए पहले से आप अपनी एक लिविंग विल बना के चले जाए कि भाई नाउ आई डोंट हैव डिसीजन मेकिंग पावर, सो जो मैंने पहले अपने लिविंग विल में लिखा था उसे एग्जीक्यूट करके मेरे लिए डिसाइड किया जाए। सेकेंड ऑप्शन, सो दिस इज द करेक्ट। Second option says right of execution by an individual does not depend on any recognition or legislation by a state. So this is again correct. जो आपका right of execution of living will है वो किसी भी legislation के execution पे depend नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन इज इट इज ऑल्सो नोन एज लिविंग विल। मैंने आपको पहले ही बताया कि एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव को ही लिविंग विल कहा जाता है, तो दिस इज अगेन अ करेक्ट ऑप्शन। सो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, जो कहता है राइट ऑफ एग्जीक्यूशन बाय एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन रिकॉग्निशन ऑन द लेजिस्लेशन बाय द स्टेट। ऐसा नहीं है, ये तो हमने पॉइंट नंबर बी में भी देखा, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्लैट पीजी पेपर में और फॉर दैट मैटर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पेपर में आपको नॉट हमेशा देखते हुए चलना है, बिकॉज मोस्टली दे आस्क क्वेश्चन पुटिंग नॉट और दे आस्क व्हाट इज इनकरेक्ट, सो दैट आपको ज्यादा टाइम लगे उस क्वेश्चन को करने में, राइट? एंड आपकी एनालिटिकल स्किल्स यहीं से चेक की जाती है, राइट? इन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, तरीका मैं आपको बताऊंगी। सो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, किसके रिगार्डिंग में? इन रिगार्ड्स विद द जजमेंट ऑफ ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब डिसाइडेड इन द ईयर 1996 बाय सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले ये जानो इस केस में क्या हेल्ड हुआ था। तो सबसे पहले जो केस आता है यूथनेशिया का, वो है पी रथिनाम केस, ठीक है? पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस इज 1994 जजमेंट। अब इस जजमेंट में ये कहा गया था कि राइट टू लाइफ जो है वो इंक्लूड करेगा राइट टू डेथ, मतलब आपके पास राइट टू लाइफ है एंड राइट नॉट टू लिव भी है, ये कहा गया था। और ये भी कहा गया था कि जो सेक्शन नंबर 309 आईपीसी है, जो कि बात करता है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को पनिशेबल बनाने की, वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है? वो पूरा सेक्शन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है। इट इज एन लाइक डेरोगेशन विद आर्टिकल 21 of Constitution of India. This was held in the case of P. Rathinam. Now, इस पर्टिकुलर जजमेंट को ओवररूल कर दिया गया ज्ञान कौर के जजमेंट में इन 1996 आफ्टर 2 years, ठीक है? और ये कहा गया कि देखो राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट नॉट टू लिव, राइट? एंड ये भी कहा गया कि जो सेक्शन नंबर 309 ऑफ आईपीसी है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, राइट? नाउ अब हमें क्या देखना था? हमें देखना था कि इन चारों ऑप्शन में से क्या इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन देखते हैं करेक्ट है या इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन कहता है राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, ये करेक्ट है क्योंकि यही हेल्ड हुआ था ज्ञान कौर के में, राइट? दूसरा बोलता है राइट टू लाइफ इज अ नेचुरल राइट एम्बेडेड इन आर्टिकल 21 बट सुसाइड इज एन अननेचुरल टर्मिनेशन और एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ एंड देयरफॉर incompatible and inconsistent with the concept of right to life. This is again correct क्योंकि यही बात ज्ञान कौर में कही गई थी कि आपके पास सुसाइड करने का राइट नहीं है, यू डू नॉट हैव राइट टू डाई, राइट? नाउ
third option says section 309 of IPC was held constitutional. Again, I told you that पी रथिनाम में सेक्शन 309 आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड किया था, बट ज्ञान कौर ने पी रथिनाम के केस को ओवररूल कर दिया था. नाउ डी ऑप्शन, जो कि सिर्फ ऑप्शन बचा है तो आंसर यही होगा. ये कहता है राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई. दिस was not held in the case of Gyan Kaur, this was held in the case of Pri Rathinam, so this will be the correct answer. Now next question is question number 4. It says in the judgment referred in excerpt, which of the following was not held by the Supreme Court of India? चारों में से सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड नहीं किया? पहला, a person of competent mental faculty is entitled to execute an advance medical directive in accordance with the safeguard. So ये तो इसमें हेल्ड हुआ ही था. कौन से जजमेंट में? एक्सेप्ट के जजमेंट में. एक्सेप्ट में कौन सा जजमेंट है? कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 जजमेंट में. इसमें यही हेल्ड हुआ था कि जो कॉम्पिटेंट मेंटल फैकल्टी का पर्सन है वो अपनी लिविंग विल बना सकता है. राइट, सो दिस इज करेक्ट. सेकंड इज एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग having mental capacity to take an informed decision has right to refuse medical treatment including withdrawal from life saving device. This is again correct. जो पर्सन है, अडल्ट है अगर वो, और वो अगर अपने डिसीजंस ले सकता है तो वो ये डिसीजन ले सकता है कि मेरे लाइफ सपोर्ट को विड्रॉ किया जाए. कब? सब्जेक्ट टू द कंडीशन प्रोवाइडेड इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट. वो वेजिटेटिव स्टेट में होना चाहिए और वो टर्मिनली इल होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ सो दिस इज अगेन अ करेक्ट ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन सेज an adult human being having mental capacity to take an informed decision has no right to refuse medical treatment including withdrawal from life saving device. This cannot be correct answer, right? Because यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सेम ऊपर वाला स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग है जिसके पास मेंटल कैपेसिटी है डिसीजन मेकिंग की, वो अपने राइट डिसीजन नहीं ले सकता है व्हेन इट कम्स टू रिमूवल ऑफ और विड्रॉल ऑफ सेविंग डिवाइसेस. सो दिस विल बी द रॉन्ग. सो यहाँ पे रॉन्ग ही पूछा जा रहा था, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन डी को भी देख लो. ये कहता है इन केस ऑफ इनकॉम्पिटेंट पेशेंट्स द बेस्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल विल बी अप्लाइड एंड सच डिसीजन विल बी टेकन बाय स्पेसिफाइड कॉम्पिटेंट मेडिकल experts. This is correct. This was held in this case कि अगर जो पर्सन अगर वो इनकॉम्पिटेंट है तो उस केस में उसके बेस्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल को यूज करके जो कॉम्पिटेंट मेडिकल एक्सपर्ट्स होंगे वो उसके लिए डिसीजन लेंगे. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन सेज which of the following judgment does not relate to constitutionality of right to die? कौन सा जजमेंट है जो constitutionality of right to die से रिलेट नहीं करता है? पहला ऑप्शन है अरुणा शॉनबर्ग. अब देखो अरुणा शॉनबर्ग आपने हमेशा सुना होगा ये जजमेंट का नाम. यूथनेशिया का जो ह्यू एंड क्राई हुआ था, यूथनेशिया पे जो भी इंडिया में बात हुई थी वो इसी जजमेंट से हुई थी. राइट नाउ इस जजमेंट में ये कहा गया था कि पैसिव यूथनेशिया जो है वो पॉसिबल है. किस ईयर में? 2011 में. तो ये तो डील करता है राइट टू डाई से. सेकेंड इज डीएस ग्रेवाल वर्सेस बिम्मी जोशी. 2009 की ये जजमेंट है. नाउ ये जो है ये आंसर भी है बिकॉज ये जो जजमेंट है ये राइट टू डाई से डील नहीं करती है. तो फिर ये किससे डील करती है? ये जजमेंट जो है ये बात करती है विशाखा गाइडलाइंस की एप्लीकेबिलिटी की. नाउ विशाखा गाइडलाइंस जो है ये सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट विमेन एट वर्क प्लेस से डील करती है. अब यहाँ पे फैक्ट्स ऐसे थे कि जो प्रिंसिपल था स्कूल का उसने कुछ इंटीमेट लव लेटर्स लिखे थे टीचर को. राइट जब ये टीचर कंप्लेन करने जाती है तो इस टीचर को प्रोविजन पीरियड में टर्मिनेट कर दिया जाता है. राइट तो ये कोर्ट के पास जाती है तो कोर्ट ये हेल्ड करता है कि देखो जो स्कूल अथॉरिटीज हैं या जो चेयरमैन है सारे के सारे लायबल हैं क्योंकि उन्होंने एडिक्वेट केयर नहीं रखी, उन्होंने विशाखा गाइडलाइंस वहां पे फॉलो नहीं की है और इसमें विक्टिम को 50,000 कॉम्पनसेशन भी दिया जाता है. नाउ नेक्स्ट जो केस है वो है मारुति श्रीपति Dubal versus State of Maharashtra. This is High Court, Mumbai High Court judgment. In this particular case, again right to die की बात की गई थी और कहा गया था कि right to life includes right to die and 309 is not constitutional. Same बात पी रथिनाम में कही गई थी. राइट पी रथिनाम को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जहां पे ये हेल्ड हुआ था right to life does not include right to
right to life includes right to die, and section 309 is unconstitutional. Now let's move forward and see last question of the day, which says which of the following is incorrect. देखो 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 नेगेटिव लैंग्वेज में पूछे गए हैं. यहाँ पे पूछा जा रहा है which of the following is incorrect regarding passive euthanasia as per judicial precedent in India. 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, पूछा जा रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है when it comes to passive euthanasia. पहला ऑप्शन है it is legally permissible in India. So this is तो correct. We all know after common cause versus Union of India, पैसिव यूथनेशिया को इंडिया में लीगलाइज कर दिया गया है. दूसरा ऑप्शन है इट इज लीगली नॉट परमिसिबल. तो भाई अगर परमिसिबल है तो नॉट परमिसिबल तो नहीं हो सकता, बिकॉज ए और बी दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. दैट मींस आंसर क्या होगा? बी होगा. ठीक है. नाउ बाकी दो ऑप्शंस को भी देख लेते हैं. ये कहता है पैसिव यूथनेशिया एंटेल्स withholding of medical treatment for continuance of life. This is correct. Passive euthanasia is to avoid a prolonged agony. बिल्कुल सही बात है. क्या होता है कि पर्सन एक बार अगर वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच जाता है, वो टर्मिनली या मेंटली इल हो जाता है, वो अपने डिसीजंस नहीं ले सकता, अपने काम नहीं कर सकता, तो उस केस में जो पर्सन है वो मेंटल एग्नी में पहुंच सकता है. और उस प्रोलॉन्ग्ड मतलब एक लंबे टाइम तक एग्नी ना हो, उसको रोकने के लिए पैसिव यूथनेशिया को जो है वो लाया गया है. नाउ अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सुनने के लिए, देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए. आई एम भूमिका इंदौरी, साइनिंग ऑफ. थैंक यू. बाय बाय.